Hi dear, my name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So this is chapter second of class 8th. हमारे पास second part है ये. First part हम already cover कर चुके हैं. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources का. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So लेटेस्ट बिगिन. हम वाटर की बात कर रहे थे. सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की हम बात करते हैं. पहले हमने वाटर स्कैरसिटी एंड वाटर प्रॉब्लम की बात की थी पिछले वीडियो में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स. राइट. So access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today, and step have to be taken to conserve this dwindling resource. And even through water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit. जब हम वाटर को ओवर यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और वाटर को पॉल्यूट करते हैं, तब वो अनफिट हो जाता है आपको यूज़ करने के लिए. when we discharge untreated and partially treated sewage, agriculture chemicals, industrial effluents in water bodies, तो वाटर जो है वो कंटेमिनेट्स हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, एंड दैट वाटर बिकम्स अनफिट फॉर यूज़. राइट. द पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट होते हैं दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड. सो इस तरह से जो पानी है वो अनफिट हो जाता है. राइट. for drinking and doing others work. Then conservation of water resource में अगर हम देखें, so most of these chemicals are non biodegradable. non biodegradable का मतलब है कि वो जो है डिग्रेड नहीं होते हैं easily and reach humans body में पहुंच जाते हैं through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them into water bodies. जो भी इंडस्ट्रीज़ अपना जो एफ्लुएंस है विदाउट ट्रीटिंग वो जो है जब वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करते हैं, तो उससे जो है वाटर बॉडीज़ में जो वाटर होता है दैट गेट कंटेमिनेटेड वाटर बॉडीज़. राइट. अगर वो अच्छे से एक जो प्रोसीजर है आपके ट्रीटमेंट का, वाटर का सीवेज ट्रीटमेंट है, प्लांट है, उसको अच्छे से ट्रीट करें, देन वो डिस्चार्ज करे वाटर को, तो इस तरह से जो है वो वाटर को हम बचा सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं. राइट. फॉरेस्ट एंड अदर जो वेजिटेशन है कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. एंड वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. वाटर को हार्वेस्टिंग करना. राइट. ये आपके आंध्र प्रदेश, साउथ एंड तमिलनाडु वाले रीजन में काफ़ी जो है होता है. The canals used for irrigation field should be properly lined to minimize losses by water sewage, and sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry region with higher rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. अब क्या होता है कि जो आपके जहाँ पे नहरें होती हैं, राइट, द कैनल जो हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए फील्ड्स में, उनको प्रॉपरली हमें लाइन अप करना चाहिए ताकि जो है वाटर को लॉस हम मिनिमाइज़ कर सकें. और साथ ही साथ इरिगेशन के लिए हम स्प्रिंकल्स का यूज़ कर सकते हैं. राइट. एंड इन ड्राई एंड हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन में क्या होता है, जो ड्रिप होती है, ड्रिप और ट्रिंकल इरिगेशन है, वो काफ़ी यूज़फुल होती है उस एरिया के लिए. So the valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. Right. इस तरह से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं अपने पानी को. Now natural vegetation and wildlife की बात करते हैं. So जो natural vegetation and wildlife है exist only in narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere, atmosphere and actually ये biosphere में ही होते हैं आपके natural vegetation and wildlife. So in the biosphere living beings are interrelated. जो living beings होते हैं biosphere में, they are connected with each other, interdependent होते हैं एक दूसरे पे for their survival. अपने survival के, अपने needs के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं. This life supporting system is known as ecosystem. इसको ecosystem कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र. Now vegetation and wildlife are valuable resource. Plants provide us with timber. जो पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं, टिम्बर देते हैं, शेड्स, शेडो आपकी छाया देते हैं एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग को.
प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, सो असेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड शेल्टर बेड्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, सॉइल की बात हो रही है, एंड गिव्स फ्रूट्स, पौधे जो है हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड पेपर जो कि हम अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, राइट। जो बुक्सें हैं हमारी, जो कॉपीज़ है, जो पेपर उसमें लगा है, वो प्लांट से ही बन के आता है। नाउ जो वाइल्ड लाइफ है वो इंक्लूड करते हैं आपके एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प करती है फ्लावर्स की, एंड हैव अ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज अ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम, राइट। सो एक एनवायरनमेंट में बैलेंस बना के रखते हैं ये छोटे छोटे इंसेक्ट। The birds feed on insect and act as a decomposer as well. And vulture, due to ability to feed on dead livestock, is a squencher. जो vulture है वो dead livestock को जो है क्या करता है, खाता है, right? तो उसको क्या कह दिया हमने, स्क्वेंचर्स। एंड उसको कंसिडर किया जाता है विटाल, मतलब बिग क्लिनजर ऑफ एनवायरमेंट को क्लीन करने वाला। सो एनिमल्स आपके बिग हो स्मॉल हो, दे आर द इंटीग्रल पार्ट of environment which maintain balance in the ecosystem, right? Now distribution of natural vegetation की जब हम बात करते हैं, the growth of vegetation depend primarily on temperature and moisture. Major vegetation type of the world are grouped as forest, grassland, scrub and tundra. इस तरह से vegetation को जो है वो classify किया गया है. Now in areas of heavy rainfall, huge trees may thrive, and forest thus is associated with areas having abundant water supply. As amount of moisture decrease, the size of trees and their density reduce. जैसे जैसे जो है पानी का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होता है, ट्रीज़ का साइज़ भी जो है डिक्रीज़ होता है, उनकी डेंसिटी वो भी घने नहीं होते, कम होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, राइट। एंड शॉर्ट स्टन ट्रीज इन ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल एंड फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ग्रासलैंड हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपकी 7th क्लास वाली एनसीईआरटी, राइट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में ही हम देखेंगे जो थॉर्नी श्रब्स हैं, स्क्रब्स हैं, ग्रो इन ड्राई रीजन, लो रेनफॉल वाले एरिया में। इन सच एरियाज जो प्लांट्स है हैव अ डीप रूट्स एंड लीव्स with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. टुंड्रा जो वेजिटेशन है पोलर रीजन की, बोल्ड नहीं है, पोलर रीजन की, comprised of mosses and lichens. टुंड्रा रीजन में कौन सी वेजिटेशन होती है, लाइकेंस होती है, मॉसेस होते हैं, राइट। जो फॉरेस्ट है वो भी ब्रॉडली क्लासीफाई किए गए हैं एज अ एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन जब वो अपनी जो लीव्स को शेड करते हैं, राइट। सो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं वो शेड करते हैं अपने लीव्स को पर्टिकुलर सीजन में और कंजर्व करते हैं आपके वाटर एंड मॉइस्चर को थ्रू ट्रांसपिरेशन, राइट। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो किस तरह से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है दैट इज़ आवर वेल्थ, राइट, एंड प्लांट गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स। जो पौधे हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स में ह्यूमन बींग भी आ जाते हैं, राइट, एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। Change of climate in human interference can cause the loss of natural habitat for the plants and animals, and many species अगर आप देखोगे have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. कुछ तो जो है विलुप्त हो गई है, कुछ विलुप्त होने वाली है, राइट। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, सॉइल इरोजन, राइट, नेचुरल फैक्टर्स जो कि एक्सेलरेट करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन को of these resources. One of the major जो concern है is poaching, which result in a sharp decline of number of particular species. So poaching भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो एनिमल्स है वो विलुप्त हो रहे हैं। जो एनिमल्स पोचिंग है for collecting illegal trade of hide, skin, nails, horns as well as feathers. Some of these animals are जैसे आपके टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसॉर्स, स्नो लेपर्ड, ostrich, peacock. These can be conserved only by creating awareness, right? So moving further conservation में अगर आप देखोगे तो we have national parks, wildlife sanctuaries है, biosphere reserve है, जो कि
बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. Conservation of creeks, lake, wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. Indeed. And due to killing, several birds and animals have either become extinct and are on the verge of extinction. क्योंकि बहुत सारे जो birds हैं, animals हैं, उनको kill कर दिया गया है, right? तो इस तरह से काफ़ी के habitats जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं. तो कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए हैं, कुछ विलुप्त होने वाले हैं. सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक आपके सोशल फॉरेस्ट्री है, वन महोत्सव है, शुड बी एनकरेज एट कम्युनिटी लेवल पे, राइट. स्कूल चिल्ड्रन जो है उनको विज़िट कराना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए उनको बर्ड वॉच के लिए विज़िट करवाना चाहिए उनको नेचर कैंप में, कैंपस में, सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज़. उनको भी उनसे लगाव हो, राइट. तभी वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे. नाउ वी हैव एन इंटरनेशनल कन्वेंशन है हमारे पास आपकी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, दैट वी कॉल सिटीज़, हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड that list several species of animal and birds in which trade is prohibited. ऐसे कई सारे एनिमल्स स्पीशीज़ के नाम हैं जिनके ऊपर ट्रेड जो है वो बिल्कुल बैन है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, राइट. नाउ वी हैव नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर. नेशनल पार्क क्या होते हैं, राइट. अ नेशनल जो पार्क होता है एक नेचुरल एरिया होता है दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन एंड मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट इन फ्यूचर जनरेशन के लिए. बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया linked through a global network and intended to demonstrate the relationship between conservation and development. तो ये आपका है, ये आप इनकी सिंपल डेफिनेशन आप खुद देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. नाउ सिटीज़ की हम बात करते हैं. जो आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन governments, right. It aims to ensure that international trade in specimen of wild animals and plant does not threaten their survival. And roughly जो 5,000 जो species है animals की and 28,000 species plant की that has been protected. and जो bears है, dolphin है, cactus, corals, orchids and आपके जो aloes some of the example जो कि इसके द्वारा protect किए गए हैं, right. So guys, that's all for today. This chapter is really so long. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and at the very same time आपको ये समझ में भी आया होगा. So guys, that's all for today. Thanks for watching. Bye and take care.